Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel, myself Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know, and I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 6 and we are doing three heads of the simple arithmetic mean in individual series, mean in discrete series, and mean in continuous series. And we have done mean in individual series because there are two methods in this, direct method or indirect method. And in the mean in the discrete series also there are two methods, there are two ways to compute the discrete series. There first is direct method and second is indirect method. Now let's move on the next head. The as you can see here, arithmetic mean in continuous series. So in this also there are two ways to compute this series. First is direct method and second is indirect method. So let's get start. So what is the arithmetic mean in continuous series? The mean of the data can be computed in two ways, namely first is direct method and second is indirect method or shortcut method. First is direct method. The mean of the data would be computed in the following manners. So find out the mid values of class intervals by using the formula. So firstly we compute the mid value, and the formula of the mid value is L plus U upon mid 2. L means lower limit and U means upper limit, and the mid values are multiplied with their respective frequencies so as to obtain FM. सो अगर हम मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, FM मिलेगा. द थर्ड स्टेप इज़ द सम ऑफ FM. एग्जाम्पल सिग्मा FM इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द डाटा टू ऑब्टेन द मीन. और जो FM का सम होगा जिसे सिग्मा FM कहा जाएगा उसको नंबर ऑफ आइटम्स के डाटा से हम डिवाइड करेंगे. सिम्बॉलिकली दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस मीन इज इक्वल टू सिग्मा FM अपॉन में n, where n is number of items and sigma FM is sum of product of mid values with their respective frequencies. So let's do the illustration related to this direct method of the mean in continuous series. So find the mean from the following frequencies distribution. So हमें एक frequency distribution से mean find out करना है. So this is the question. सो यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है 0, 7, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28 to 35, 35 to 42, 42, 49 एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है इसके बीच के 19, 25, 36, 72, 51, 43 एंड 28. सो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हमें जैसे मार्क्स गिवन है हमको सेम एज इट इज़ उसको नोट डाउन करेंगे. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी, उसको भी सेम एज नोट डाउन करेंगे एंड ये हमारी एक्स हो जाएगी. इस फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे तो 274 आएगा. अब मिड वैल्यूज़ को कंप्यूट करने के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था L प्लस यू अपॉन में 2 मीन्स लोअर लिमिट अपॉन में अपर लिमिट अपॉन में 2. सो क्या करेंगे हम 0 को 7 से प्लस करेंगे तो 7 आएगा. 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा. सेम एज 7 को 14 से प्लस करेंगे तो 21 आएगा. 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा. 14 प्लस 21 35, 35 डिवाइड बाई 2 इज़ 17.5. 21 प्लस 28 इज इक्वल टू 49, 49 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24.5. Then 28 plus 35 is equal to 63. 63 divided by 2 is 31.5. And 35 plus 42 is equal to 77. 77 divided by 2 is equal to 38.5. And the 42 plus 49 is equal to 91. 91 divided by 2 is equal to 45.5. So हमारी इस तरीके से सारी मिड वैल्यूज जो है वो कंप्यूट हो जाएगी.
उसके बाद हम FM को फाइंड आउट करेंगे। सो FM को फाइंड आउट करने के लिए F को M से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 19 को अगर हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.5 आएगा। 25 को अगर हम 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 262.5 आएगा। 36 को अगर हम 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 630.0 आएगा। 72 को 24.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764.0 आएगा। 51 को 31.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106.5 आएगा। 43 को 38.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1655.5 आएगा। और 28 को 45.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1274.0 आएगा। इस सभी का टोटल करेंगे तो 7259 आएगा। अब बस हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो मीन इक्वल टू सिग्मा FM अपॉन में n। सो सिग्मा FM हमारा 7259 आया। 7259 अपॉन में n नंबर ऑफ़ आइटम तो 274। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 26.49 आएगा। इस तरीके से हमारा जो FM है मीन का, ठीक है, वो हमारा कंप्यूट हो जाएगा। सो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था, ठीक है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में को कंप्यूट करने का। अब इसका जो शॉर्टकट मेथड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी क्वेश्चन से करेंगे, सेम क्वेश्चन से डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे और सेम से ही इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमने जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था, जो शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड हमने किया था, तो सभी का आंसर जो है वो सेम आया था। इसी तरीके से इनका भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको जो समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।